Hello students, today our topic is computer networks, and in this lecture we are going to discuss some question answer that is related to computer network, and all these question answers are very important as far as board exam is concerned. So let's start. First of all, let us take a quick revision of the term that we already learned in our previous lecture. So as you can see on the screen that this is unit number 3rd of his syllabus, Introduction to Computer Networks. And if we want to divide this unit into different parts, then we can easily divide this unit into 3 different parts. And weightage of this unit is of 10 marks. It means out of 70, this unit is of 10 marks. Okay, and out of which only four marks, there is a question of 4 marks, that is an application based question, and rest 6 marks, there is total theoretical discussion about this unit that will be asked in your examination. And basically these topic related to LAN, WAN, networking devices and topologies. Okay, so one thing is very clear that as far as this unit is concerned, then you know, a question must be asked from network devices, whether it may be a modem, hub, switch, repeater, router, or gateway. And one question is definitely asked from network topologies, that is Starbus, tree, and mesh. And one question is definitely asked from LAN, WAN networks. Okay, and these are the terminologies. In third part you can easily see that these are the terminologies such as cookies. Okay, VoIP, voice over internet protocol, is another important topic. So all these topics we are already discussed in our previous lecture. So in this lecture our focus is to solve numericals, or we can say that more precisely application based question based on computer networks. So let's start. This is question number 1. APS Varanasi want to link its computer in head office in New Delhi to its office in Varanasi. Name the type of the network that will be formed. So first of all, as far as distance between Varanasi and Delhi is concerned, or New Delhi is concerned, the distance is about 800 kilometers. So there are 3 different types of network on the basis of location, or we can say distance. These are LAN, MAN, and WAN. So the range of the LAN is about 10 kilometers, maximum up to 10 kilometers. MAN 100 kilometers, and more than 100 kilometers you can easily know that it is considered as a WAN. So if APS Varanasi want to link its computer in head office in New Delhi to its office in Varanasi, then definitely WAN will be formed. So answer is WAN. It means wide area network. Okay. Which communication media would be used to form this network? As far as communication media is concerned, we can use guided media, and we can use also unguided media. So in this case, since the distance is 800 kilometers, so guided media is not an ideal one. And if guided media is used, then optical fiber cable is the best option among all other options. There are only 3 options: coaxial cable, twisted pair cable, and optical fiber cable. So long distance communication, we know that optical fiber cable is best. But if there is a comparison between the guided media and the unguided media, then definitely in this case, since the distance is about 800 kilometers, so obviously we can say that guided media is not a correct option. Unguided media is the correct option in that case, and we can use radio wave for such type of communication. So overall I think radio wave is the correct option for this question. Now that is question number 2. In sometimes question is not asked directly, and these types of questions is called the application based questions. So the terminology is not directly asked, such as what do you mean by switch, or what is a switch, or define or write a short note on the switch or hub or router or whatever, a modem. These all are the network devices.
And sometimes question is asked such like that, that is mentioned in question number 2. Name the devices, and you can easily see that there is a hint about the devices, and you have to tell the answer of the device. Question is, this device constantly look at all the data entering and exiting your connection, and it can block or reject data in response to an established rule. And second question is, this device connect multiple nodes to form a network, and it redirects the received information only to the intended node. Okay, so there are two questions which are related to network devices, and here one thing is expected from you, that you have to tell the name of that particular device. Okay, so first is, the device constantly look at all the data entering and existing your connection, and it can block or reject data in response to an established rule. So let us see. The first one is firewall. So let us see the diagram of the firewall. This is the diagram of the firewall. You can easily see that, आसानी से देख सकते हैं आप. तो ऐसा नहीं है कि ये फायरवॉल है, ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज ओनली जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फायरवॉल कि ये क्या काम कर सकता है. तो फायरवॉल क्या पहले है क्या? फायरवॉल ऑब्वियसली एक नेटवर्क डिवाइस है, ये तो हम सब जानते हैं, बट इट मे बी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, और वी कैन से दैट मोर प्रिसाइसली इट इज़ अ फर्मवेयर. ओके, तो एक फर्मवेयर है जो क्या काम करता है. फर्मवेयर ये एक ऐसा फर्मवेयर है या सॉफ्टवेयर है जो ये करता है कि अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है. ये लाइन याद कर लीजिएगा. फायरवॉल प्रिवेंट्स अनऑथराइज एक्सेस टू ए नेटवर्क. क्लियर? ये अनऑथराइज एक्सेस नेटवर्क में प्रिवेंट करता है. ये एंटीवायरस नहीं है, ये अनऑथराइज एक्सेस प्रिवेंट करने के लिए होता है. ये देखिए आप, दीज आर द टू नेटवर्क, वैन एंड लैन, एंड बिटवीन दीज टू नेटवर्क देयर इज अ फायरवॉल. अब जो भी कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन दीज लैन एंड वैन, तो अभी ये किसके थ्रू हो रहा है? फायरवॉल के थ्रू. तो कोई भी कोई भी अनऑथराइज एक्सेस अगर करना चाहता है तो उसे कौन प्रिवेंट करेगा? ये फायरवॉल प्रिवेंट करेगा. और ये फायरवॉल क्या है? एक नेटवर्क डिवाइस. ये किस तरह की नेटवर्क डिवाइस है? इट मे बी सॉफ्टवेयर, इट मे बी हार्डवेयर, और मोर प्रिसाइसली वी कैन से दैट इट इज़ अ फर्मवेयर. तो ये क्या है? ये एक फर्मवेयर होता है आपका एक तरीके से. तो ये क्या काम करता है? इट इंस्पेक्ट इनकमिंग एंड आउट गोइंग ट्रैफिक यूजिंग अ सेट ऑफ रूल टू आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक थ्रेड्स. तो जो भी डेटा आ रहा है या जो डेटा जा रहा है किसी भी नेटवर्क में, ये उस डेटा को चेक करता है, ठीक है, और ये आइडेंटिफाई करता है कि इसमें कोई थ्रेट तो नहीं, अगर है तो उसको ब्लॉक कर देता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. इसमें जो भी डेफिनेशन दे रखी होती है, जो भी रूल्स एंड जो भी इसकी डेफिनेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग जो डेटा ये हम कह सकते हैं कि जाना नहीं चाहिए, तो उस डेटा को प्रिवेंट करता है, रोकता है नेटवर्क से पास होने के लिए. चाहे वो आउटगोइंग हो चाहे इनकमिंग हो, दोनों ही केसेस में अगर डेटा आ रहा है या डेटा जा रहा है और सस्पिशियस डेटा है कुछ ऐसा जो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैच करता है, तो उस डेटा को प्रिवेंट करता है, रोकता है नेटवर्क के थ्रू पास होने के लिए. ये तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फायरवॉल. तो ये बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव होता है फायरवॉल का, इसलिए इसको फायरवॉल बोलते हैं. ठीक है, जो कुछ जाएगा इसके अंदर से जाएगा डेटा, अंदर से मतलब इन सेंस दैट फायरवॉल के थ्रू पास होगा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में. और अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी भी तरीके का हुआ तो वो डेटा को एक तरीके से प्रिवेंट करता है फायरवॉल. तो ये वर्क होता है फायरवॉल का. एंड द क्वेश्चन इज सेज दैट दिस डिवाइस कॉन्स्टेंटली लुक एट ऑल द डेटा एंटरिंग एग्जिस्टिंग कनेक्शन. एक ऐसी डिवाइस जो भी कुछ डेटा आ रहा है या जा रहा है उस डेटा को चेक कर रहा है. तो ऑब्वियसली जैसे भी पता है वो फायरवॉल है, तो इसका काम डेटा मॉनिटरिंग का तो होगा ही, और साथ साथ अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करने का भी होगा. तो डेटा मॉनिटरिंग प्लस अनऑथराइज एक्सेस, और ऑब्वियसली जब अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करेगा तो उसके लिए डेटा को रेगुलर बेसिस पे चेक भी करना पड़ेगा उसको. तो ये तो ऑब्वियस सी बात है. तो सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, इट कैन ब्लॉक और रिजेक्ट डेटा इन रेस्पॉन्स टू एन एस्टैब्लिश्ड रूल. तो इसमें जो भी रूल्स होते हैं, एस्टैब्लिश्ड रूल होते हैं जो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा ब्लॉक होगा, कौन सा डेटा रिजेक्ट होगा और कौन सा डेटा एक्सेप्टेबल है. तो इस डिवाइस को क्या कहते हैं? इस डिवाइस को कहते हैं फायरवॉल. अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जा चुका है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जा चुका है. अब आप कहेंगे सर कि इसमें तो सिलेबस तो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है
और इससे पहले कंप्यूटर नेटवर्क जहाँ तक लास्ट ईयर की बात करें तो आईपी में था नहीं, और आईपी का सिलेबस टोटली चेंज्ड है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछा जा चुका है? तो आंसर इसका ये है कि सिलेबस ऑब्वियसली चेंज हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 2021 के लिए भी सिलेबस चेंज हुआ है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। पर जैसा आप जानते हैं पहले जो आईपी का सिलेबस था उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज ए यूनिट थी, जिसको रिप्लेस कर दिया कंप्यूटर नेटवर्क ने। अगर हम इस एकेडमिक सेशन की बात करें 2020-21 की, क्लियर। लेकिन उससे पहले कंप्यूटर नेटवर्क जो प्रीवियस आईपी के पेपर्स थे, जहाँ जब जावा के साथ जो सिलेबस अटैच था उसमें ये पढ़ाया जाता था कंप्यूटर नेटवर्क। पहले आईपी के सिलेबस में जावा, कंप्यूटर नेटवर्क्स और एचटीएमएल ये पोर्शन और एसक्यूएल ये पोर्शन थे। तो अभी जो आईपी का सिलेबस है उसमें आपका जावा को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है आपको आपका पाइथन ने, और एसक्यूएल एज इट इज़ है, लेकिन हालांकि वो फंक्शन बेस्ड भी ज़्यादा है, वो एक अलग मैटर है। कंप्यूटर नेटवर्क अभी भी है, हालांकि बीच में अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने रिप्लेस कर दिया था कंप्यूटर नेटवर्क को आईपी में, पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अभी जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन देखने हैं, जानने हैं, समझने हैं, तो आप 2019 से पहले के सभी पेपर्स आप देख सकते हैं। तो उनमें अभी कंप्यूटर नेटवर्क था, क्योंकि अभी जो सिलेबस है ऑलमोस्ट वही सिलेबस है जो पहले था, और क्वेश्चंस का वेटेज मीन्स अभी 10 मार्क्स का कंप्यूटर नेटवर्क आता है, तो पहले भी 10 मार्क्स का ही था। तो इसमें ये है आपका, तो इसीलिए मैंने ये कहा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और तब अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कई बार, सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो वहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि अभी जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, अगर आप उसे देखेंगे और उसमें क्वेश्चंस का टाइप देखेंगे तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो एक आइडिया देता है क्लियर कट कि किस तरह का पेपर आने वाला है, एग्ज़ाम किस तरीके का होने वाला है आपका। तो नेटवर्क डिवाइसेस, जैसे मैंने बोला कि आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में मालूम है, आप उसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उनको उनकी डिटेल आपको मालूम है, तो आप डेफिनेटली उनका आंसर भी दे देंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन भी आता है तो। ये नहीं है कि हमेशा एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मॉडर्न के बारे में बताइए, लिखिए, या एक शॉर्ट नोट लिखिए। आप एक्सपेक्ट ऐसा ना करके चलें, तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको फंक्शनलिटी मालूम है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, जैसा इस क्वेश्चन में था। क्या था क्वेश्चन? ये था, दिस डिवाइस कॉन्स्टेंटली लुक एट ऑल द डेटा एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग योर कनेक्शन एंड इट कैन ब्लॉक और रिजेक्ट डेटा इन रेस्पॉन्स टू एन एस्टैब्लिश्ड रूल। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इस तरह के क्वेश्चन फायरवॉल से रिलेटेड। सिलेबस में स्पेशली फायरवॉल मेंशन नहीं है। इट डजंट मीन कि ये आ नहीं सकता, डेफिनेटली पूछा जा सकता है, और पूछा जा चुका है कई बार, और बहुत कॉमन नेटवर्क डिवाइसेज है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो एक तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दिस डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल नोड्स टू फॉर्म ए नेटवर्क एंड इट रीडायरेक्ट्स द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन ओनली टू द इंटेंडेड नोड्स। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा हब और स्विच के बारे में। तो जब कभी भी हमें नेटवर्क इस्टेब्लिश करना होता है तो हम हब या स्विच के थ्रू कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हम सभी को मालूम है, लेकिन एक डिफरेंस है हब और स्विच के बीच में। तो यहाँ बात हब या स्विच की हो रही है, ये तो क्लियर है, क्योंकि मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करना है नेटवर्क में, हब और स्विच का काम होता है। ये एक नेटवर्क डिवाइस होती है, ठीक है, डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं इसके अंदर, तो उसके थ्रू हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। जब बात करते हैं इंटेलिजेंट डिवाइस की, तो इसका मतलब है हब इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि हब डेटा ब्रॉडकास्ट करती है। तो जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट्स होते हैं, जितने भी नोड्स कनेक्टेड होते हैं इसमें, या वर्क स्टेशन कनेक्टेड होते हैं, एक ही मीनिंग है, तो उन सभी को डेटा, सेम डेटा ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इट डजंट मीन कि एक डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को ही जाएगा सिर्फ, तो जितनी भी डिवाइसेज अटैच होंगी उन सभी को वो डेटा मिलेगा, तो इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट होना। तो हब डेटा का ब्रॉडकास्ट करती है, लेकिन स्विच की जहाँ तक हम बात करें तो स्विच डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करती। स्विच पर्टिकुलर इंटेंडेड नोड जो होगी उसी को डेटा सेंड करेगी कंप्यूटर नेटवर्क में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ओके, तो ये काम करता है स्विच, इसलिए स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस बोला जाता है। इंटेलिजेंट इसीलिए क्योंकि जिस कंप्यूटर के लिए डेटा सेंड होना है सिर्फ उसी कंप्यूटर या उसी नोड के लिए डेटा सेंड होता है, बाकी अदर कंप्यूटर्स या नोड्स अनइफेक्टेड रहते हैं उसमें, तो इसलिए इसे इंटेलिजेंट डिवाइस बोला जाता है। तो हब और स्विच में याद रखिएगा डिफरेंस भी पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा भी गया है,
और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, जैसे इस समय आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, नो डाउट अबाउट इट। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ डेफिनेशन को याद कर लिया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाते हैं बच्चों को मार्क्स की रिगार्डिंग, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर में इतना लिखना, SWITCH स्विच, एंड यू गॉट 1 मार्क। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं एक्सप्लेनेशन की, और आपको टर्मिनोलॉजी को मालूम है, सेंस मालूम है आपको उसका, क्या पूछा जाना है, क्या लिखना है इसके अंदर, किसके बारे में बात हो रही है, तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक अच्छा है, लेकिन जो स्टूडेंट रोट लर्निंग वाली बिलीव करते हैं, रटते हैं सब चीज़ों को, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर डिसएडवांटेज रहेगा। तो इस तरह क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलिए, एग्जाम में आएंगे, और जो भी याद करें समझ के याद करें कि सेंस क्या है, और फिगर के थ्रू याद करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे ये है, फायरवॉल की इमेज थी, इसलिए इसको देख लीजिएगा किस तरीके से पूछा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन थे। चलिए, और आज करते हैं एक और न्यूमेरिकल। अभी तक हमने न्यूमेरिकल किए कंप्यूटर नेटवर्क्स के लास्ट 2 पीरियड्स में, लास्ट 2 वीडियोज़ में। अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं देखे तो लास्ट 2 वीडियोज़ को जाके देखिए, उसमें अराउंड 4 to 5 न्यूमेरिकल्स कराए गए। और अभी जो आपका नेक्स्ट रिवीजन टेस्ट होने जा रहा है उसमें भी न्यूमेरिकल ही आएंगे। इंटेंशनली मैंने नेटवर्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है एज फार एज रिवीजन टेस्ट इज कंसर्न। वन इज बेसिकली रिलेटेड टू थ्योरेटिकल पार्ट, एंड सेकंड इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो एक तो आपको टर्मिनोलॉजी याद हो जाए, दूसरा आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग मालूम हो, और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो आप उनको आसानी से कर भी सकें। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है। मेहनत आपको करनी है, लेकिन पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये मैं जो वीडियोज़ हैं उनमें बताता रहता हूँ कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली। तो वो देखते रहिए, समझते रहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अभी आपको करना है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूँ यहाँ पर। तो अभी आपको बताना है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, देख लीजिए, और ऐसा एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एग्जाम में, आना भी है जहाँ तक, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जो अभी CBSE का सैम्पल पेपर है वहाँ भी एक क्वेश्चन दे रखा है। एक्चुअली ये वही क्वेश्चन है जो दे रखा है CBSE सैम्पल पेपर में। तो ये तो आना ही है, इस तरह का एक क्वेश्चन आना है, ये नहीं लेकिन इस तरह का एक क्वेश्चन आना ही है डेफिनेटली एग्जाम में। और बहुत आसान होता है, क्वेश्चन देने में बहुत लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियली में। अगर आपने क्वेश्चन को समझ रखा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम किसी तरह की होने वाली है। चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या करना है इसके अंदर। क्वेश्चन है, कंपनी इन मेगा एंटरप्राइजेस 4 विंग्स ऑफ बिल्डिंग एज शोन इन द डायग्राम। तो एक कंपनी है मेगा एंटरप्राइज, उसमें 4 विंग्स है, बिल्डिंग्स है, W1 W2 W3 W4। ओके, डायग्राम में दिखा रखा 4 बिल्डिंग्स है। हमको अभी बिल्डिंग्स से मतलब अभी नेटवर्क की कहीं कुछ बात नहीं हुई है, आगे देखते हैं। अभी कह रहे हैं कि डिफरेंट बिल्डिंग्स के बीच में डिस्टेंस दे रखी है। तो W1 से W2 W3 W4 W5, तो सभी W4 तक ही है, W5 नहीं है। तो सभी बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। यहाँ तक भी अभी हमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, सिर्फ देखना है और क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट दे रखा है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ऑफ द विंग। तो सभी विंग के अंदर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी दे रखे हैं। W1 में सबसे ज़्यादा है, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स बेसिकली आर इन विंग 1 W1। तो ये हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ तक हमें एक आइडिया लगता है कि डिफरेंट फोर विंग्स हैं, W1 W2 W3 W4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी के सभी विंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, और सभी में कुछ नंबर, सर्टेन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। W1 में कंप्यूटर्स सबसे ज़्यादा है। और जहाँ तक डिस्टेंस की बात करें तो एक थोड़ा सा ये भी लगता है कि W3 और W2 के बीच में जो डिस्टेंस है, विंग 2 और विंग 3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, अराउंड 125 मीटर्स। ओके, क्लियरली आई थिंक क्लियर होगा। आगे देखते हैं। कंप्यूटर्स इन ईच विंग्स आर नेटवर्क बट विंग्स आर नॉट नेटवर्क्स। तो ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर्स जो विंग्स के अंदर है वो तो नेटवर्क है, पर विंग्स आपस में नेटवर्क नहीं है। द कंपनी हैज़ नाउ डिटेक्टेड टू कनेक्ट द विंग्स ऑल्सो। तो अब कंपनी क्या काम करना चाह रही है, कंपनी का ये करना चाह रही है कि जितने भी विंग्स हैं ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड हो, इन सभी को आपस में इंटरकनेक्टेड करना है। क्लियर? तो सभी के अंदर अपना नेटवर्क है, बिल्डिंग 1 का अपना नेटवर्क है, बिल्डिंग 2 के अंदर अपना नेटवर्क है, विंग 1 के अंदर, विंग 2 के अंदर, लेकिन ये सभी विंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, यानी आपस में कोई डेटा शेयर करना चाहे एक विंग से दूसरी विंग में, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको पॉसिबल बनाना है, और शायद क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग में आगे कुछ होगा। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट पार्ट आ गया आपका,
सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द एबव कनेक्शन। अब ये जो केबल लेआउट कनेक्शन बताना है आपको, तो ये इस पार्ट से बिलोंग करता है, ये समझिए आप। अब इसका क्या मतलब है, आपको केबल लेआउट जब बनाना है तो दो बातें याद रखनी है आपको। टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो केबल है, मिनिमम केबल में मैक्सिमम कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है। दैट इज़ द रूल, दैट इज़ अ सिंपल बेसिक रूल। सबसे मेन यही पॉइंट है। तो क्या करना होगा, तो करना ये होगा, मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर आप W1 लिख दीजिए, यहाँ W2 लिख दीजिए, W3 लिख दीजिए, W4 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ज़रा क्या क्वेश्चन में कहा गया है। मैंने W1 को पहले क्यों लिखा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ये ज़्यादातर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आप अगर सर्वर रूम बनाना चाह रहे हैं या सर्वर इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो किस विंग में करेंगे या किस बिल्डिंग में करेंगे, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, याद रखिएगा, जिस बिल्डिंग में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे वहाँ हम अपना सर्वर बनाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए सिर्फ इसकी एक ही वजह है, और वजह ये है कि लोकल ट्रैफिक मैक्सिमम होगा उस केस में। ठीक है, तो लोकल ट्रैफिक को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम जिस बिल्डिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं वहीं हम सर्वर भी बनाते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें एक बात है जो पूछी तो नहीं गई है, लेकिन हमको ध्यान तब भी रखना है, और वो ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स किस बिल्डिंग में, W1। तो अगर सर्वर हम बनाने भी जा रहे हैं W1 में, तो W1 को पहले लिखेंगे और उसके बाद बाकी सभी बिल्डिंग्स को लिखेंगे। कोशिश करेंगे कि W1 से सभी का कनेक्शन हो, इस्टेब्लिश हो आसानी से। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले तो W3 से W1 के बीच में डिस्टेंस है 50 मीटर। W3 से W1 के बीच में डिस्टेंस है 50 मीटर। क्लियर, ये हो गया। फिर देखिए, देखिए आपको इसमें ये भी है कि जो डिस्टेंस है उसको भी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसे अवॉइड करना है, जैसे W4 और W3। तो W4 और W3 देखिए कहाँ है, W4 और W3 ये है डिस्टेंस। ओके, तो चलिए पहले कनेक्शन बना देते हैं। W3 से W1 के बीच में 50, W1 से W2 के बीच में 60, W1 से W2 के बीच में 60, ये हो गया। उसके बाद देखिए W2 से W4 के बीच में 25, ये हो गया 25। क्लियर, W4 से W3 के बीच में 170, 170। W3 से W2 के बीच में 125, 125। और W1 से W4 के बीच में 90, ये डिस्टेंस होगी 90। तो अब आप कहेंगे कि सभी अगर हम सभी बिल्डिंग्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, बिल्डिंग तो कनेक्ट हो ही जाएंगी। लेकिन कनेक्ट तो करना ही है, बात ही नहीं है कनेक्शन की, तो दे ही रखा डिस्टेंस है। लेकिन केबल में आपको ये भी देखना है कि केबल को आपको मिनिमम केबल यूज़ करनी है, मिनिमम केबल आपको यूज़ करनी है। देखिए W1 से W2 अगर हम देखें तो कनेक्ट हो रहा है 60 मीटर की डिस्टेंस के साथ। क्लियर है, एक बात याद रखिएगा, 100 मीटर्स के अबव अगर डिस्टेंस है तो रिपीटर यूज़ करना पड़ेगा। तो जहाँ कहीं भी डिस्टेंस 100 मीटर से अबव है तो उसको तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, अगर हो सकता है तो। नहीं हो सकता तो फिर तो यूज़ करना ही है, उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो W1 से W2 के बीच में आई थिंक डिस्टेंस 60 मीटर है। W1 से मैं कनेक्शन इस पहले इसलिए इस्टेब्लिश कर रहा हूँ क्योंकि W1 में मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर W1 में ही विंग में है, और मे बी पॉसिबल कि सर्वर यहाँ हम इस्टेब्लिश करें। तो W1 से पहले कनेक्शन देखेंगे। W1 से W2 60 मीटर है डिस्टेंस, और कोई शॉर्टकट है नहीं। अगर हम W4 के थ्रू जाते हैं या W3 के थ्रू जाते हैं, जैसे हम मान लीजिए W2 पर W3 के थ्रू जाते हैं, तो पहले W1 से W3 की डिस्टेंस 50 मीटर होगी, और देन W3 से W2 के बीच में डिस्टेंस 125 मीटर होगी। कोई सेंस नहीं है, तो ये तो फिक्स है, इसके लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसको तो हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा।
आप ऐसे भी देख सकते हैं कि W1 से अगर W4 की तरफ जाए तो 125 मीटर एंड देन फिर 25 मीटर, तो 150 मीटर की डिस्टेंस बैठेगी, उसका भी कोई सेंस नहीं है। तो इसको तो लॉक कर दिया, इसलिए मैंने इसे सर्कल मार्क कर दिया कि इनके बीच में ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम W1 से W3 के बीच में देखें तो शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो 50 मीटर डिस्टेंस का है, और कोई ऐसा केबल क्या देखेंगे आप, मान लीजिए आप W4 के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो 170, 125 प्लस 170 कोई सेंस नहीं। W2 के थ्रू जा रहे हैं तो 60 प्लस 25 प्लस 170, तो भी कोई मतलब नहीं है। तो 50 मीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अच्छा, अब अगर आप W4 की तरफ जाना चाह रहे हैं तो W1 से W4 की तरफ जाएंगे तो देखिए 125 मीटर की केबल आपको यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन आप W2 तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी और ये डिस्टेंस है 60 मीटर। क्लियर है? तो अगर आप 25 मीटर की केबल और यूज़ करेंगे तो आप W4 तक आसानी से पहुंच जाएंगे। यहाँ तक W4 तक पहुंच जाएंगे। तो कितना होगा 60 प्लस 25, 85। तो 85 मीटर की डिस्टेंस यूज़ करनी पड़ेगी, और उसमें एक एडवांटेज ये भी होगा कि W2 से W4 कनेक्टेड हो जाएगी आपकी। तो मुझे लगता है कि सभी बिल्डिंग आपस में अब इंटरकनेक्ट हो चुकी हैं। देखिए, W1 से W3 जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। W2 जा सकते हैं, W4 जा सकते हैं, W4 से W2 W1 भी जा सकते हैं। W4 से अगर मुझे W3 जाना है तो 60 प्लस 25 प्लस 50 कितना हुआ, 135, और W3 और W4 के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 170। तो कोई सेंस नहीं है कि इस लाइन को हम यूज़ करें, इसका तो कोई मतलब नहीं है। क्लियर? इसी तरीके से अगर W3 से W2 के बीच में जाना है मुझे, तो डिस्टेंस अभी जो हमने बनाया है केवल लेआउट, उसमें 50 प्लस 60 110 है, जबकि डायरेक्ट लाइन 125 की है, तो इसको भी कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही अगर W1 से लेकर W4 के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें तो कितना है, डायरेक्ट है 90, लेकिन ऐसे कितना बैठ रहा है 85, तो इसका भी कोई सेंस नहीं है। तो ये सब यूज़लेस है, ये सब केबल की एक तरीके से हम कहें कि केबल का कोई सेंस नहीं बैठता डायरेक्ट कनेक्शन का, क्योंकि इनडायरेक्ट कनेक्शन पर भी केबल आपकी जो है वो कम इसके अंदर यूज़ हो रही है। तो अभी हम इसको डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि ये जो जितना भी सर्कल है ना, इसको आप समझिए खाली यही केबल लेआउट कनेक्शन है। तो मैं इसको थोड़ा फेयर कर देता हूँ अभी, ठीक है? चलिए एक दूसरे पेज पर बनाते हैं, नहीं इसी पर बनाए, चलिए इसी पर ड्रॉ करते हैं इसको। ये कनेक्शन हुआ हमारे हिसाब से, तो जो भी है जितना भी है, तो ये केबल लेआउट कनेक्शन हुआ। तो इसमें सभी 4 विंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी। देखिए हमने इसके अंदर जो मेन फोकस रखा वो किस बात पर रखा, आप इस बात को समझिए। हमने ये रखा कि सभी बिल्डिंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो। क्लियर? दूसरी बात यह है कि केबल कम से कम यूज़ हो, और दूसरा ये, और लास्ट पॉइंट ये रखा हमने कि हमने जो हमने जो सर्वर अगर हमें इस्टेब्लिश करना है तो उसके थ्रू मैक्सिमम, उस विंग के थ्रू जहाँ हमें सर्वर इस्टेब्लिश करना है वहाँ उसके थ्रू हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कनेक्शंस देखने पड़ते हैं। ठीक है? ऐसा इसमें कुछ कहा नहीं है इंटेंशनली, लेकिन आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इंटर कनेक्शन करना है यहाँ पर। तो ये इसका केबल लेआउट कनेक्शन बन गया आपका। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको 2-3 बार ड्रॉ करके देखना होता है, ठीक है? और इसमें कभी कभी क्या होता है कि एक बार में आंसर नहीं आता है, तो जितनी भी पॉसिबल है कॉम्बिनेशन है वो सब आपको बना के देखने पड़ेंगे, फिर उसमें टोटल को काउंट करना पड़ेगा। जैसे इसमें मान लीजिए कुछ ऐसा था 60 50 25, तो इस सब को जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, ठीक है? ऐड करने के बाद मान लीजिए आया 135, तो ये देखिए कि 135 से कोई और ऐसा केबल लेआउट है इसमें जिसमें 135 से भी कम है। अगर है तो वो फिर आपका आंसर है। तो कभी कभी क्या होता है, ये तो क्वेश्चन आसान था तो इसमें एक बार में हमें क्लियरली ये डायग्राम बन गया, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, तो उस केस में आपको डिफरेंट केबल लेआउट कनेक्शन बना के देखने पड़ते हैं। मिनिमम केबल कनेक्शन वाला जो होगा ऑप्शन, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको इसमें वर्क करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं। द कंपनी वांट्स
इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन ऑल विंग्स सजेस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी। ओके, पहले उससे पहले हाँ, टोपोलॉजी पूछा गया, इसके अंदर टोपोलॉजी कौन सी यूज़ होगी, तो टोपोलॉजी कौन सी यूज़ होनी चाहिए। टोपोलॉजी इसके अंदर बस टोपोलॉजी का तो कोई मतलब है नहीं, इसके अंदर हम स्टार टोपोलॉजी यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करेंगे, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपका। सेकंड है आपका द कंपनी वांट्स इन, अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपका टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी ही आंसर रहता है। अब ये चीज़ देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपका जो अगर टोपोलॉजी है तो मैच टोपोलॉजी हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि मैच टोपोलॉजी में तो देखिए सभी विंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो मैच तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे। इसी तरीके से ट्री टोपोलॉजी भी एक करेक्ट नहीं होता, आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ट्री टोपोलॉजी में भी केबल लेआउट ज़्यादा ही लगेगा आपका। केबल लेआउट, केबल का जो केबल की कॉस्ट ज़्यादा होगी, केबल की लेंथ भी ज़्यादा होगी। बस टोपोलॉजी बहुत सिंपल टोपोलॉजी है और डायरेक्ट कनेक्शन के लिए यूज़ की जाती है डिफरेंट नोड्स के बीच में, तो वो भी आंसर नहीं होता। तो ज़्यादातर केसेस में मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर स्टार टोपोलॉजी होगा, इस केस में भी स्टार टोपोलॉजी है बेस्ट आंसर, स्टार टोपोलॉजी ही रहता है ज़्यादातर केसेस में, खासतौर से इस तरह के क्वेश्चंस में। क्लियर है, आगे देखते हैं। द कंपनी वांट्स इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन ऑल द विंग्स सजेस्ट ए सुटेबल टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेट चाह रहा है तो क्या होगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉडबैंड, और ये सब जानते हैं। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी बात हो तो आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही लिखना है, ब्रॉडबैंड आंसर होगा इसका सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, जो भी इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें इंटरनेट की बात होगी। और फोर्थ पार्ट है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन ऑफ द कंपनी वांट्स मिनिमाइज नेटवर्क ट्रैफिक। पहले रिपीटर कहाँ यूज़ होगा भाई, और हार्वर्ड स्विच कहाँ यूज़ होगा, और रिपीटर 100 मीटर से ऊपर की डिस्टेंस में यूज़ होता है। अब 100 ना तो यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है। क्लियर है, सभी 100 मीटर से बिलो 100 मीटर है, तो रिपीटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी हमको। सेकंड, हार्वर्ड स्विच कहाँ यूज़ होगा, हार्वर्ड स्विच सभी बिल्डिंग में यूज़ होगा, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर इंटरकनेक्ट करने के लिए आपको हार्वर्ड स्विच की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लास्ट पार्ट है द कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली विद द ऑफिस इन हिली एरिया, सजेस्ट ए वे टू कनेक्ट इट इकोनॉमिकली। तो कंपनी अपने हेड ऑफिस से कनेक्ट करना चाह रही है न्यू दिल्ली में, और ये कंपनी कहाँ सिचुएटेड है इसको भी देखते हैं, ये कहाँ की बात हो रही थी कि जो भी डिस्टेंस है, लेकिन हिली एरिया की बात हो रही है, तो वहाँ ऑब्वियसली गाइडेड मीडिया तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर गाइडेड मीडिया का कोई सेंस नहीं है। अनगाइडेड मीडिया की बात करें तो फिर रेडियो वेव इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो वहाँ रेडियो वेव आंसर होगा। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल हम एक और क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।